Hello students, how are you? I am Faisal Mushtaq, teacher of Jefferson Marist School. So now students, today is the next part of the video, subject history standard 8. So now today I will start and I am going to teach declarations of the independence in the year of 1776, and the next points, the War of Independence, then the third point is Statue of Liberty, and the fourth, birth of the United States of America, and fifth, impacts of the American revolutions, and sixth, the French revolutions, and the last I will discuss suppressive government. So now students, so the first we talk about declarations of independence 1776. So now according to your books, the Declaration of Independence is a pronouncements adopted by the Second Continental Congress meeting at the State House of the Philadelphia on the 4th July 1776. So now the Declaration of Independence also talk about the simple idea that the people who started the United States believe in. So it said that every person in the US has to right to live, liberty and pursuit of happiness. हर को अधिकार था फ्रीडम का, लिबर्टी का और खुशी से वहां रहने का. But it also said that the government has to listen to its own people. और ये भी राइट था कि सरकार अपने लोगों का, अपने जनता का और समाज के रहने वाले लोगों का पूरी तरीके से उसका ध्यान रखे. So this independence, the declarations of the independence, so now has a great significance to the America people because it was independence from King George. King George, actually, who was ruled all the time. And the three main goals of the declarations of the independence. उस समय के तीन बहुत बड़े जो मेन गोल्स थे, उनमें सबसे पहला गोल्स क्या था? Troops win. पहला, troops, the rally of the troops win, and the second is foreign alliance, and the third, announce the certain of a new country. तो ये तीन गोल थे बच्चों. So the declarations of independence. So now the representative of all colonies once again met at the Philadelphia. So they acquired or adopted the declarations of the independence. इन colonies की एक मांग थी और वो थी declarations of independence. So it was written by Thomas Jefferson. So the declaration is considered as the Magna Carta of the American independence. So now considered, I will clear having thought about that carefully. So now Magna Carta, I will clear you that Magna Carta is just like a charter of the right and agreed to by the King of John of England. So now it opened the path of democracy and the nationalism. So in America and throughout in the world, ये केवल ये जो डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म का जो रास्ता लोगों के लिए खुला, तो ये केवल अमेरिका ही के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये एक तरीके का उसको आप मिसाल बोलिए या उसको इम्प्लीमेंट बोलिए, पूरी दुनिया में उसका पूरी तरीके से फैल चुका था. तो it clearly specify that supreme source of power was with the people. So उसको आप बोल सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पे आम लोगों के लिए एक पावर जो होता है ना, स्पेसिफाई कर दिया गया जो वहां पे आम लोगों के लिए सक्षम था. तो it enables American to fight their war of independence. तो enable that means make it possible for. तो अब ये जो है अमेरिका का वार ऑफ जो इंडिपेंडेंस है
कॉलोनीज का और अमेरिका के बीच, ब्रिटिश के बीच जो वार है, उस वार का ये लड़ाई का सिलसिला बना रहा। सो नाउ, सो द कॉलोनीज हैड ऑल द राइट्स टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंस। जितने भी कॉलोनीज के राइट थे बिल्कुल फ्री और इंडिपेंडेंस थे, बट द डिक्लेरेशन वाज द बेस ऑन द प्रिंसिपल दैट द पीपल वाज द राइट टू सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट। तो डिक्लेरेशंस का एक बेस था, उनका एक प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल क्या था कि गवर्नमेंट, जो कॉलोनीज हैं, वो अपने अनुसार सरकार किसकी होनी चाहिए वो अपने अनुसार उसको लाना चाहते थे। सो इट सर्व्ड एज अ ग्रेट ब्लो imperialism. Imperialism, that means a policy of extending of a country power and influence sound like this. So it encouraged revolutionary movement throughout in the world. तो ये पूरा इंकरेज किया गया और ये मूवमेंट इंपीरियलिज्म पूरे वर्ल्ड में वो पूरी स्प्रेड हुआ। सो नाउ ये जो लड़ाई जो लड़ी गई, ये कॉलोनीज और इंग्लैंड इन दोनों के बीच में लड़ी गई। एंड द अदर कंट्री ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व। उसके अलावा और कुछ और भी ऐसे कंट्री थे जो इन दोनों के लड़ाई में आए और साथ एक दूसरे का दिया। उसमें पर्टिकुलरली फ्रांस वाज अ मेजर अलाई टू द कॉलोनीज। अलाई मतलब कहते हैं मित्र। तो फ्रांस भी एक ऐसा कंट्री था जो कॉलोनीज के सपोर्ट के लिए उसके मतलब आगे आए, मित्र देश में उनके सपोर्ट से। इट हेल्प द अमेरिकन फाइट फॉर देयर फ्रीडम। So France was a major ally to the colonies. It helped the American fight for their freedom. और आजादी के लिए उन्होंने उनका साथ दिया और उनके और अगेंस्ट जो उनके अगेंस्ट का कंट्री था और आजादी के लिए उनसे फ्रांस जो है सहयोग के लिए आ गया और लड़ाई भी लड़ी। So now the next points. The War of Independence. George Washington was the president of the presidents of the United States of America. So he fought many battles and at last defeated to the England. So the war came to an end with the Treaty of Paris. पेरिस के संधि से इस वार की समाप्ति हुई। It was the sign between the colonies and the British government in the period of September 1783. So now, Statue of Liberty. So Statue of Liberty. Statue of Liberty, you know, the Statue of Liberty is situated in the New York. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बड़ा ही खूबसूरत शहर है स्टूडेंट्स, और न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी ये एक आइडेंटिटी है ये स्टैचू, और पूरा वर्ल्ड फेम है। इट वाज अ गिफ्टेड बाय द फ्रेंच टू द अमेरिकन्स। सो इट वाज dedicated on October 28, 1886. So the date of American declarations of the independence inscribed, and it is the figure of the Roman goddess of the freedoms. तो ये एक डेडिकेटेड है और इस न्यूयॉर्क शहर के लिए, और उसके अलावा जो डेट मेंशन्स है 28 October 1886. So now, birth of the United States of America. So the British government recognized the independence of the 13 colonies as per the treaty. संधि के मदद से 13 कॉलोनीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। The treaty. So the treaty is a word, is a binding of the agreement. So these colonies, 13 colonies, came together and formed the United States of America. So इस तरीके से अमेरिका का उदय हुआ। A constitution was drafted. संविधान को तैयार किया गया। उसके बाद it declared the United States of America as a republic. So a republic is a form of a government. So where the head of the country is the elected. यहाँ पे जो कंट्री का हेड होता है उनके माध्यम से यहाँ पर जो गवर्नमेंट के फॉर्म जो गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं, जो उनमें बहुत सारे जो मेन कैबिनेट में या जो बहुत सारे उसके अंदर काम करते हैं, उनको वो नॉमिनेट करते हैं। सो नाउ
इट अपोज द सिस्टम ऑफ द मोनार्की। सो इन लोगों ने विरोध किया, राजा के जो प्रणाली होते हैं यानी सिस्टम ऑफ मोनार्की, उसका उन्होंने विरोध किया। जो राजा के द्वारा जो शासन चल रहा था, इसका उन लोगों ने काफी विरोध किया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द बिल ऑफ राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? बिल ऑफ राइट। इट गारंटेड फंडामेंटल राइट सच एज द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, next religion, right to religion, and right to justice to all the citizens. So on that time the George Washington became the first elected president of the United States of the America. तो भारत उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे और उन्हीं के दरमियान में ये सारे के सारे राइट्स इंप्लीमेंट हुए। द व्हाइट हाउस, जैसे आज इंडियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट को आप ले लीजिए, सांसद में बहुत सारे कैबिनेट मंत्रीगण सेंट्रल के बैठते हैं, वहां दो लोगों में दो हाउसेस होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में दो हाउस हैं, निचले सदन यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा है। तो उसी तरीके से वहां अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके रहने का द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन डीसी, ये एक ऑफिशियल रेजिडेंस है। जैसे सांसद है, राष्ट्रपति भवन है, वैसे ही अमेरिका का व्हाइट हाउस है। सो इट वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो व्हाइट हाउस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह है। इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशंस। In this impact of the American Revolution, some more important points I will clear. One, emergence of United States of America. अमेरिका का कैसे मतलब ओराइजन हुआ यानी उद्गम हुआ, उभार हुआ, वो बताएंगे। Establishments of the true documents republic. Sorry, democratic republic. Establishments of the true democratic republic. And third, are written constitution and the four inspired revolutions. So now emergence of the United States of America, the revolution to the formation of the United States of the America, a country which at last went on to become one of the most effective countries of the world. उस समय अमेरिकन रिवॉल्यूशंस में अमेरिका एक उभरा हुआ देश था, नामी देश था और प्रसिद्ध देश था, और आज भी है, आज के सिनारियो में भी है, हर मामले में। आज के सिनारियो में व्हेन वी कंपैरिजन अमेरिका कंपैरिजन फॉर द अदर कंट्री, तो आपको हर मामले में, टूल्स के मामले में, मशीनरी के मामले में और हर चीज के मामले में अमेरिका आगे है। इकोनॉमी के मामले में सुना establishments of the true democratic republics. So now this was a very important achievement of the American revolutions. Democracy is improved in the United States of America as a true sense. और उस समय ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था अमेरिकन रेवोल्यूशन का, और डेमोक्रेसी काफी इंप्रूव में आ चुका था, इंप्रूव, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, एक लिखित दस्तावेज, कानून, संविधान के अनुसार, अमेरिकन संविधान के अनुसार। द अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। एक लिखित दस्तावेज के साथ संविधान का जो एक लिखित आता है, उसमें इस चीज को लिखा गया। ऑलमोस्ट ऑल द नेशन द वर्ल्ड नाउ हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, और इनका देखा देखी सारे देश आज उसको फॉलो कर रहे हैं, और आज है हमारे इंडियन में भी है, हमारे इंडिया में भी है। एंड इन इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशंस, क्या प्रेरणा मिली इस रिवॉल्यूशन से? द सक्सेस ऑफ अमेरिका रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड रिवोल्यूशनरी वेव्स इन द वर्ल्ड, काइंड ऑफ द, आई थिंक काइंड ऑफ, इसको काइंड ऑफ द ऑसिलेशंस कहा जाता है। तो ये जो लहर थी, ये बहुत ही तेजी से इंडियन जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी के जो ये लहर थी, ये पूरे वर्ल्ड में फैला।
the French revolutions was inspired by the American revolutions. तो फ्रांसीसी क्रांति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ. So it is also inspired India to rise against its foreign masters right now. So the French revolutions, फ्रांसीसी क्रांति यानी the French revolutions. The French Revolution was the one of the great revolutions and events in the whole in the world's European history. So these revolutions began in the year of 1789. So now these revolutions change the total social and economic structure. इस फ्रांसीसी क्रांति ने सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस, बहुत चेंजेस आए इस क्रांति के दरमियान में, और इट वाज अ चेंज नॉट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बट इट चेंज द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द इंटायर वर्ल्ड, नॉट द पर्टिकुलर ऑफ दिस कंट्री. आई एम टेलिंग फ्रांस. पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ा, पूरी दुनिया पे द फ्रेंच रेवोल्यूशंस का. व्हाट वर द काउज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस? काउज क्या थे, कारण क्या थे? उनमें 3 ग्रुप का उभरना, emergence of 3 groups. So now in 18th century France had a feudal society. Feudal means it denotes the system of the feudalism. तो उनमें जो actually it was just unjust and ununique in the nature. Unjust, and that means I am telling about the meaning of unjust and fair. तो उस समय it was divided into 3 classes known as the states. So classes, what were the classes? So one, I am telling that one, first states, second state, and third states. The first states, the clergy, priest and church official, जिनको पादरी वर्ग कहते हैं, जो चर्च में काम करने वाले लोग, उनके बारे में. सेकेंड स्टेट, द नोबिलिटी, कुलीन वर्ग के लोग, द क्वालिटी ऑफ आई थिंक बीइंग नोबल इन. और जो थर्ड है वो एक जनरल आम लोग थे, तो आम मतलब वन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल्स. सो नाउ द फर्स्ट 2 स्टेट led very happy and luxurious life. They enjoyed all privileges and the rights. सारे विशेष अधिकार उनको प्राप्त थे, अपनी जिंदगी बिल्कुल रॉयल और मतलब कंफर्टेबल जीते थे. They paid no taxes to the government. इनको कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था. भी हम फर्स्ट 2 की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट्स. द थर्ड स्टेट इंक्लूड कॉमनर, यानी कि ये जो आते हैं ना द थर्ड स्टेट, इनके अंदर में जो ट्रेड जैसे मर्चेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं. ये सारे वर्ग, ये सारे प्रोफेशंस के लोग इस कॉमनर्स में आए. दे ऑर्गेनाइज 95% ऑफ द पॉपुलेशन. सो दे वर अंडर प्रिविलेज पीपल हु वर टैक्स हेवीली. ये वे लोग थे जिनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, वो भी हेवीली. दैट मीन्स काफी ज्यादा भारी आई एम टेलिंग अबाउट कि ज्यादा लोगों को. तो ये अच्छी बात नहीं थी. दे वर नॉट द रिस्पेक्टेड इन दिस सोसाइटी. समाज में इनकी कोई मतलब इज्जत नहीं थी. हालांकि आज के डेट में लोगों के डॉक्टर्स, टीचर्स, हम लोग आज देखिए किस नजरों से देखते हैं, लेकिन मर्चेंट, डॉक्टर, ट्रेडर्स, टीचर्स, सो दे वर द and who works then they were not respected in the society. तो इन लोगों की उस दौर में, उस समय में कोई इज्जत नहीं थी. लेकिन आज हम इनको किन नजरों से देखते हैं? आज हम एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं. लोग कहते हैं नहीं चलो डॉक्टर है, भगवान का दर्जा है, टीचर है, गुरु किसी माँ बाप से ऊंचा दर्जा मिलता है. सो आज हम देखिए कहाँ है, हम क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, और पहले ये लोग क्या सोचते थे. Therefore these people wanted to change existing social system but had not the political right. ये लोग चाहते थे
कि बहुत सारा, यानी कि प्रेजेंट सोशल चेंजेस सिस्टम में बदलाव चाहते थे, लेकिन ये राइट ही इनको नहीं था। इन लोगों को वो पॉलिटिकल राइट ही नहीं था कि ये कोई भी चीज या कोई भी बदलाव ला सके। So now, suppressive government. So France was ruled by the autocratic king. Autocratic is a word, I will clear it, students, relating to our rulers who has absolute power. So उस समय लुई 16वां का नाम था और उनकी पत्नी वाइफ का नाम था, हर नेम वाज मैरी एंटोनेट। तो इन लोगों की जो लाइफ थी, ये लोग his wife, the king and his wife managed to empty the treasury. खजाना को बिल्कुल खाली करते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे, एंड एक्चुअली no one was allowed to criticize the king policies. कोई ऐसा उस समय नहीं था जो इन दोनों की आलोचना करे या इनको रोके। किसी भी राज्य का खजाना खाली हो तो उस प्रजा का क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं बच्चों। तो ये राजा और उसकी ये जो किंग और ये क्वीन, ये दोनों मिलके उस समय के खजाने को बिल्कुल खत्म कर रहे थे। और कहां खत्म कर रहे थे? अपने लग्जरियस लाइफ में। सो नाउ दे रूल लाइक डिक्टेटर। दोनों के जो रूल थे बिल्कुल तानाशाह, जैसा चाहा, जिस पे चाहा, जो हुक्म चाहा चला लिया। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं, कहीं कोई लॉ नहीं, कहीं कोई आर्टिकल नहीं, शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशंस हो तब ना आर्टिकल शेड्यूल पार्ट हो, लेकिन वहां ऐसा तो था नहीं, डिक्टेटरशिप था। द एडमिनिस्ट्रेशंस बिकेम करप्ट एंड द इनसफिशिएंट। बिल्कुल इनका रूल में एडमिनिस्ट्रेशंस करप्टेड था, अयोग्य था, मतलब इनकैपेबल था, और बिल्कुल द ऑफिशियल्स टॉर्चर पीपल टू पे टैक्स एंड अरेस्टेड देम। और ऑफिशियल लोगों को दबाव दिया जाता था, टैक्स पे करने के लिए कहा जाता था, और ये बिल्कुल सही बात नहीं था। सो नाउ, और उनको दे सेंड देम टू द स्टेट प्रिजन एट द बास्टिल, और उनको बास्टिल के किले में, जेल में डाल दिया जाता था। सो नाउ द ऑल दिस मेड द किंग एंड द क्वीन वर अनपॉपुलर इन द फ्रांस। यही उनकी ये जो डिसक्वालिटी थी, या उनका जो ये अनफेयर वर्क था, या किसी के साथ उनका ये जो करप्शन था, और खजाना का खाली करना और अपनी लग्जरियस लाइफ को जीना, यही वो कारण था कि आम फ्रांस के लोगों के बीच में, आम जनता की नजर में इन लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। So students, today I have completed chapter 2, the age of revolution. Some points I have cleared: declarations of the independence, the war of the independence, Statue of Liberty, birth of the United States of America, impacts of the American revolutions, the French revolutions, suppressive government. So these are the very important points. So now I know you listen carefully my video and read attentively. So I will give next class, next part of the video. So now good day and thank you.